the open circuit voltage is equal to the open circuit voltage across the terminals A and B. Across the terminals A and B. I'll repeat it again. किसी का छोटा है तो you can write it yourself. Thevenin theorem states that any two output terminals A and B of an active linear network containing independent sources can be replaced by a simple voltage source of magnitude V Thevenin in series with a single resistance R Thevenin, and where R Thevenin is the equivalent resistance of the network when looking from the output terminals A and B, when all the sources are removed and replaced by their internal resistances, and the after R Thevenin. मैम थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना. यस मैम. यस मैम. V वोल्टेज इन सीरीज के बाद क्या होगा? मीडियम. Thevenin theorem states that any two output terminals. Ma'am, please pardon. Thevenin theorem states that any two output terminals A and B of an active linear network containing independent sources can be replaced by a simple voltage source of magnitude V Thevenin in series with a single resistor R Thevenin, where R Thevenin is the equivalent resistance of the network when looking from the output terminals A and B, and with all the sources removed and replaced by their internal resistances, and the magnitude of V Thevenin is equal to the open circuit voltage across the terminals A and B. Okay. So it has its steps to solve. ये क्या बोल रहा है? The thing which you have written, कोई भी सर्किट है, any linear active network, active circuit, इसमें linear है और active है मतलब sources रहेंगे, there will be current source, voltage source. तो जो भी independent sources हैं, उनको क्या करना है? The thing which we are doing in सुपरपोजिशन में जब हम लोग कर रहे थे कि वोल्टेज सोर्स को क्या कर रहे थे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं, क्लोज सर्किट, और करंट सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं. करंट को ओपन करेंगे, वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे. करंट को ओपन, वोल्टेज को शॉर्ट. ठीक है, चलो ठीक है. तो अब है कि कोई भी सर्किट हो उसमें जब हम आर निकालेंगे, when you have to find the value, what we will do, we will replace the sources with their internal resistances. ठीक है, and then हमारा A भी टर्मिनल ये है, तो इस डायरेक्शन से हम जब हम देखेंगे
from this direction, what will be the value of total equivalent resistance over there? Okay, we'll do a question so that you will get to know. But this direction is important. From outward direction, you will see the अच्छा is. Suppose करो ये घर है, and you are watching from this direction कि कितना resistance है यहाँ. Right, you are just watching that. So that is our theory. Okay, and VThevenin क्या है? VThevenin is just the open circuit voltage of the circuit. जो भी आपका सर्किट है, आप लोड हटाइए यहाँ से, लोड को रिमूव किए, एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, that is your VThevenin. Fine. So अगर आपको VThevenin और RThevenin मिल जाएगा, तो क्या इसमें करंट होगा? यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा? I load would be equal to VThevenin by RThevenin. RL होगा? मैम RThevenin एक बार और बताइए ना. दोनों सीरीज में है ना. लोड जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ लोड हटा कर दे रहे हैं. दिस लोड इज नॉट देयर. जो भी RThevenin और VThevenin की जो कैलकुलेशन है, दैट इज आफ्टर रिमूविंग दिस. तो आज लोड को हमने साइड रख दिया, भैया तुम साइड में बैठो, हम कैलकुलेट करके सर्किट को इजी बनाते हैं, उसके बाद हमको ले आएंगे वापस. क्योंकि लोड होगा जो आपको क्वेश्चंस में रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोड के क्रॉस सब कुछ निकालना है. तो यू कैन नॉट टेक दैट लोड इन द सर्किट. जब आप उसको इक्विवेलेंस में आप नहीं ले सकते, फिर पता ही कैसे चलेगा कि आपने क्या निकाला. ऐसे भी जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, सपोज करो आपको जब मैंने पहले भी बोला, किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस या किसी एक एलिमेंट के अक्रॉस आपको वोल्टेज या करंट निकालना है, वी डू नॉट ट्राई टू डेविएट फ्रॉम दैट. उसको जहां पे है उसको वही रहने देते, उसके आसपास वी विल डू एवरीथिंग, बट उसको नहीं हिलाते. दैट इज देयर इन दैट प्लेस. सो पहले हम उसको प्रोसीजर है, बट लेकिन जो लिखोगे द थिंग इज दैट कि पहला काम है, जो भी आपका स्टेप 1 है कि जितना भी वोल्टेज एंड करंट सोर्स है, स्टेप 1 है आप आरएल लगा दो, ठीक है. स्टेप 2 है जितना भी वोल्टेज एंड करंट सोर्स है, वोल्टेज को आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करो, करंट को ओपन सर्किट से रिप्लेस करो. जो भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, फ्रॉम दिस साइड यू कैलकुलेट दैट वैल्यू आफ्टर रिमूविंग दिस. That will become your RThevenin. उसके बाद क्या करना है? Let the circuit be like that. बस इसका लोड हटाएंगे, वहां पे इसके अक्रॉस VThevenin कैलकुलेट करेंगे. लोड के अक्रॉस इस ओपन वोल्टेज या फिर VThevenin, भी ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर VThevenin, ठीक है. ये कैलकुलेट करेंगे, that will become your VThevenin, and then you can calculate IL. Do not get confused. Just write this statement. Sorry. Step 1. Procedure step 1. क्वेश्चन करेंगे, आसान हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा. Remove the load RL from the circuit. Remove the load RL from the circuit. मैम ये RThevenin का है. मैम रिमूव व्हाट? ये पूरा थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करना है इसका, ठीक है. प्रोसीजर को थेवेनिन थ्योरम. फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द लोड RL फ्रॉम द सर्किट. आपको क्वेश्चन में RL मेंशन, ठीक है. सेकंड, मैम ऐसा जरूरी तो नहीं है कि RL और जो हम लोग निकालेंगे RTH वो से मतलब सेम ब्रांच में हो, सीरीज में हो. वो हम थेवेनिन सर वही बोले ना, जो थेवेनिन थ्योरम में वही है कि आप कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लो, कितना भी कुछ भी सर्किट ले लो, ठीक है. सपोज करो आप बोल रहे हो कि ऐसे पैरेलल में रहेगा, मैम क्या करेंगे हम लोग, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. तो उन्होंने बोला कि ये पूरा चीज हमको नहीं, इस लोड को फर्क नहीं पड़ता है किधर क्या है, इसको बस अपने से मतलब है, वेरी सब कुछ, इसको इधर से मतलब ही नहीं कि क्या है,
वो बोल रहा है कि बस मेरे क्रॉस करंट का वैल्यू निकालो या वोल्टेज की क्या वोल्टेज रहेगा वो बताओ। सो उन्होंने बोला कि ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना अपना समझो, मैं इस पूरे सर्किट को, ये जितना पूरा सर्किट है, जरूरी नहीं है यहाँ पे सीरीज में रहे, कोई मतलब नहीं है, ये बस कनेक्टेड है यहाँ, ठीक है। एंड देन दिस होल सर्किट विल बी कन्वर्टेड इन सच फॉर्म कि एक वोल्टेज सोर्स रहेगा और एक रेजिस्टेंस रहेगा। So second is find VOC या फिर open circuit voltage across AB या फिर लोड टर्मिनल्स। जिस टर्मिनल से लोड हटाएं आपको कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ। कोई भी सर्किट है, रिमूव द नोड RL फ्रॉम द सर्किट एंड नेम द टर्मिनल्स A एंड B। इसको पहले A एंड B आपने मार्क कर दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। सेकंड स्टेप है फाइंड VOC ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स A एंड B। ठीक है, यस मैम। Third step is remove and replace all independent sources you're right, it may be voltage, it may be current, by their internal resistances। ठीक है, इसको इरेज कर दूं? यस मैम। Step 4, find the equivalent resistance of the circuit such that when looking from terminals A and B, इसको जनरली एक ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ कि दिस इज जनरली अ ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर कुछ भी सर्किट हो सकता है, कितना भी कॉम्प्लेक्स कुछ भी सर्किट हो सकता है। ठीक है, you have to find the equivalent resistance and then मैम रेजिस्टेंस ऑफ द के बाद क्या लिखे हैं? resistance of the circuit when looking from terminals A and B। This is circuit। मैम सर दैट के बाद क्या होगा? Find the equivalent resistance of the circuit when looking from terminals A and B।
और जब भी आपको अगर क्वेश्चन में आ रहा है ये चीज, ठीक है, if this is given in your question you should draw the diagram and explain. कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पता सब कुछ है, डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हैं, and people do not get कि क्या बात हो रही है, ठीक है। जब तक आप ये डायग्राम नहीं बनाओगे you will not get to know कि ये RThevenin क्या है, RL क्या है, VThevenin। तो जब भी आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना होगा ये चीज, you need to draw the diagram and explain it in this ठीक है। इसको कंप्लीट करो फिर सॉल्व करो। Okay, is it done? Yes, ma'am. Okay, shall No, I? ma'am. Yes, ma'am. Now we are doing it with Thevenin model. First we'll solve a question. Done हो गया तो hand raise करो so that I can know क्या करना है। Yes, ma'am. हो गया मैम। Okay. If you are talking at your home, just mute it. Again, I have to mute everyone. Unnat, please mute yourself. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? Now, anyone can tell me what this voltage will be? Calculate करके बताओ। फर्स्ट वाला मैम बोर्ड के ऊपर वाला दिख रहा पार्ट है। विजिबल नहीं है। मैम रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो 1.5 है या बोर्ड फिर के ऊपर वाला 15? पार्ट विजिबल 1.5 किलो ohms, 1.5 किलो ohms, और 12 मिलीएम्पियर है मैम करंट। 12 milliampere, 45 volt, 1.5 kilo ohms, 12 milliampere, 3 kilo ohms, and 1 kilo ohm. अब आप इसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। ये वोल्टेज आप सुपरपोजिशन से निकालो, नॉर्मल नोडल मेश से निकालो, किसी भी निकालो। यू कैन कैलकुलेट दिस वोल्टेज। First calculate कि 3 किलो ohms के क्रॉस
कितना करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ पे क्या करंट फ्लो कर रहा है, then multiply this together. Nine volt. कितना आ रहा है? $27 volts. चेक करो और लोगों का क्या वैल्यू आ रहा है? 10 volt. 9 volt. मैम 6 volt. पहले वापस गलत सबका इतना 18 वोल्ट is the answer. किसी को 18 आ रहा है? यस मैम। टोटल लगाओ होगा क्या वैल्यू होगा? Yes ma'am, 18 आ रहा है। 18 volt मैम। This is the x 45 minus bx by ठीक है इक्वल टू दिस प्लस दिस bx ये विक्रांत बंद करना। 3k प्लस 12 ठीक है मिली एम्पियर। अब इससे Vx निकल जाएगा। Vx की वैल्यू क्या है इससे? This is k into number category. Vx की वैल्यू क्या आएगी? एटीन ठीक है तो दिस 18 वोल्ट यूनिटी ऑफ VThevenin। अब देखो जो वैल्यू यहाँ पर है, या तो आप यहाँ पे फिर से करंट निकालो मल्टीप्लाई करो बात वही है, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर रहेगी। तो दिस इज आल्सो Vx, सो आपको VOC की वैल्यू हो गई एंड this is 18 volt and this will become your VThevenin। फाइन, तो हमारा पहला काम हो गया, थेवेनिन वोल्टेज को हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास करने को? नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया है? लोड तो हटाना है, लोड हमने हटाया हुआ है। अब बोला गया है कि जो भी सोर्सेज हैं उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना। फाइन, तो जो करंट सोर्स है वो गायब हो जाएगा, would be an open circuit, हाँ, एंड वोल्टेज सोर्स क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फाइन, ये ओपन है। अब you have to find resistance from this side। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? 3 पैरेलल विद 1.5 हो जाएगा, हाँ, 1k R terminal will be 1 kilo ohm। 3 पैरेलल Yes, 1 kilo ohm. 3 पैरेलल 1 kilo ohm. 1.5। ये चीज रियलाइज कर पा रहे हो, ये चीज पूरा हो गया, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सर्किट सीधा है, मतलब इजी सा है इसलिए दिख रहा है। बट अगर आप जब और कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने जाओगे तो अगर आप इस डायरेक्शन से नहीं आप प्रॉब्लम देख रहे हो तो यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज आल्सो, समटाइम्स इट हैपेंस। सो यू नीड टू चेक कि आप किस डायरेक्शन से चेक कर रहे हो। फाइन, सो दिस विल हैपन, दिस इज 1k,
Yes, ma'am. ना अब हमारे सर्किट क्या बन गया? अब हमारे सर्किट क्या बन गया? VThevenin is 18 volt. R Thevenin is 1K. This is 1K. Where RN is 1K. What will be your IS then? 18 by 1 plus 1. मिली एम्पेयर। प्रोसेस समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? इस जो थेवेनिन और नॉर्टन के चक्कर में है कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। Ma'am, I tried through source transformation method and I'm getting a wrong value of that VThevenin. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया आपने? इसको चेंज किया? Ma'am, source transformation not superposition methods. No. I tried through superposition to find that voltage across 3 kilo ohm. मिस्टेक किया होगा। Ma'am, I'm not getting this part. After we have to replace all the independent sources. मैम RThevenin नहीं निकल रहा है। I'm not able to do it. ओके ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक बार और बताऊं तो क्लियर हो जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे। जिनका सुपरपोजिशन से वैल्यू नहीं आ रहा है, आई कैन टेल यू द वैल्यूज आल्सो कि क्या वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, सुपरपोजिशन से भी वैल्यू आएगा। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। सुपरपोजिशन से आप एक के लोगे तो वन वैल्यू विल कम एज 30। अगर आप वोल्टेज वाला लेंगे, हम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर सकते हैं प्लीज? अरे यार रुक। I'll do that, don't worry. मैम वो 12 आया है। Let us do this। एक जो चल रहा है उसको कंप्लीट करते हैं। मैम वो 12 आया था, बस ये 30 वाला में प्रॉब्लम हुआ। पोजीशन से वैसे वैल्यू जाएगी, कहीं मिस्टेक कर रहे हो चेक करना है। फाइन, ओके मैम। स्टेप्स में जहां पे सबको इशू आ रही है, पहला है हमको दो चीज फाइंड करनी है, एक तो VThevenin फाइंड करना है, एक RThevenin फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट करते हैं। जब VThevenin फाइंड करना होता है, हम इन दोनों को फाइंड करने से पहले जो सर्किट मिला आपको उससे क्या करना है, जो RL की वैल्यू है उसको उड़ा दो। RL को बोलो भैया तुम साइड में बैठो, अभी हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, RL को साइड कर देंगे तो RL को टच नहीं करना, साइड में। नेक्स्ट क्या है, अब हमको VThevenin निकालना है और RThevenin निकालना है। नेक्स्ट व्हाट विल डू, VThevenin मींस ओपन वोल्टेज, यहाँ पे जो ओपन वोल्टेज है टर्मिनल्स A एंड B के क्रॉस जो वोल्टेज है, सब बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। VAB, VOC, VThevenin सबका मतलब एक ही है। ठीक है, ये टर्मिनल का वोल्टेज हम निकालेंगे एंड दैट विल बिकम योर VThevenin। इसके सब लोड हटा दिया, वहां ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे। RThevenin जब करना होता है तो क्या करते हैं हम, जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम सॉर्ट करेंगे अपने सर्किट में, जो करंट सोर्स है उसको ओपन करेंगे सर्किट में, एंड देन सर्किट को एज इट इज बना लेंगे जैसा था। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, फाइन, दिस इज 3K, दिस इज 1.5। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं ऐसे पूरा का पूरा, कंफ्यूजन हटाने के लिए। ठीक है, अब ये दोनों तो पैरेलल में है ना, आप इधर से देखोगे, इस जगह से देख लो क्या दिख रहा है, 3 इज पैरेलल टू 1.5। ठीक है, तो वो हो गया दैट वैल्यू इज बिकम RThevenin का वैल्यू। एंड देन आपको RThevenin पता है, आपको VThevenin पता है, इसलिए
मेक द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। दिस इज आर थेवेनिन, दिस इज V थेवेनिन एंड दिस इज R। इसको नहीं लिखे हो तो कहीं पे लिख लो, दिस इज कॉल्ड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, ये क्लियर है तो विल मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैम, इसके क्वेश्चंस ऐसे ही सिंपलीफाई करने के लिए आते हैं। क्या? इसके क्वेश्चंस ऐसे ही सिंपलीफाई करने के लिए आते हैं कि थर्मेन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने। यस, यू हैव टू फाइंड, आपको बोला जाएगा दिस इज द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन वही रहेगा, सब जगह से क्वेश्चन वही रहेगा। कभी आपको सुपरपोजिशन बोल दिया जाएगा, कभी थेवेनिन, कभी नॉर्टन, कभी कुछ, वो क्वेश्चन स्पेसिफाइड रहेगा कि एग्जामिनर किस चीज पे फोकस करना चाहे। ठीक है मैम, वहां पर इसको 45 वोल्ट को हटा क्यों दिए वहां पर से? मैम, जो आर थेवेनिन निकालने वाले थे वहां पर, जो आर थेवेनिन में 45 वोल्ट को वहां से हटा क्यों दिए? भी थेवेनिन चाहिए ना। थ्योरम ही वही है ना, आपको जब आर थेवेनिन निकालना है तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है। एक और चीज, इसको उल्टे तरीके से सोचो। ठीक है मैम, अगर 45 वोल्ट रहता वहां पर तो सीरीज में आता है ना। आपका जो थ्योरम है, अब ये लड़ाई तो आप थेवेनिन से जाके करें। ठीक है, यहाँ पे है कि जो भी जब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर वी हैव टू रिमूव, रिप्लेस एंड रिमूव द सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, यहाँ पर 45 रखोगे तो फिर यहाँ पर भी तो रखोगे, इसको भी तो हटाया हमने। मैम, उसको हटाओ तो मैं वो तो पैरेलल में था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। मैं वो तो पैरेलल में है ना। पैरेलल में है तो रूल तो रूल है ना। आप जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके वोल्टेज सोर्स के साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे थ्योरम पढ़ के आवे। जहाँ पे रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स रहेगा वहाँ पे आप मैम इक्विवेलेंट। तो क्या मैम, इसको रट ले क्या मैम? क्या? अरे यार, थ्योरम वही था, क्या करोगे? अरे भाई रुक ना यार तू। मैम, इसको रट लेना कि वोल्टेज को हटा देना है, वोल्टेज को शॉर्ट कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही। मैम, तो क्यों हटा दिए बात है ना? Just listen to me one second. Listen to me. There is something theorem is telling. अभी सपोज करो आप यहाँ पर एक वोल्टेज रख रहे हैं, हमको ये पता है कि वोल्टेज का अपना भी रेजिस्टेंस होता है। सपोज करो, मैं आपकी बात मानती हूँ, यहाँ पे मैंने वोल्टेज को रहने दिया, हाँ, एंड यहाँ पे करंट को भी रहने दिया। जब वोल्टेज को रखेंगे तो करंट को कैसे रखेंगे? करंट को भी रखेंगे। अब आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? मैम, करंट हो जाए नहीं मैम यहाँ पे सुपरपोजिशन से आप एक को रखोगे दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे? हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमको ये पता है कि वोल्टेज का अपना रेजिस्टेंस होता है, करंट का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर वोल्टेज सपोज करो ये नॉन आइडियल सोर्स रहता है, ठीक है, आइडियल सोर्स था इसीलिए हमने उसके वोल्टेज को जीरो, उसके रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। अगर इस वोल्टेज का अपना रेजिस्टेंस होता, अगर वो प्रैक्टिकल सोर्स होता तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस होता। हाँ, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस होता। देन क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में आते, ये दोनों सीरीज में आते, एंड देन पूरा सिस्टम फिर से पैरेलल में आता। हाँ, मैं पैरेलल में आता। तो वही चीज होगी। अभी क्या है कि हमारा सोर्स है, we have a source which is not practical, that is an ideal source. तो जब आइडियल सोर्स की बात होती है तो we need to replace the system, जो भी आपका वोल्टेज है। जब हम क्योंकि हम आइडियल सोर्स की बात कर रहे हैं, दैट ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे? अगर वोल्टेज रहेगा तो क्या चेंज होगा बताओ? अभी आर थेवेनिन की वैल्यू क्या होगी? मैम, अगर ये वोल्टेज इसमें रहता ना मैम तो सीरीज में आता। क्या सीरीज में आता? 1.5 और 1.5 किलो ओम और 3 किलो ओम सीरीज में आता। मैम 3 किलो ओम के साइड में सीरीज में आ रही है ना। मैं तभी से क्या बोल रही हूँ कि इधर से चेक करें, हम उधर से whatever we are calculating from this point of view. मैम 3 किलो ओम के एक साइड में बी है और एक साइड में ए है, और 1.5 के एक साइड में ए है और 1.5 के एक साइड में 45 वोल्ट है, तो दोनों सीरीज में 1 मैम। अरे हम लोग ए और बी से फाइंड कर रहे हैं।
कि अभी इस सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, दिस सर्किट विदाउट आरएल और आपको आरएल के क्रॉस निकालना है सब कुछ। द फॉर्मूला द थ्योरम इज टेलिंग कि आप लोड के क्रॉस आपको सब कुछ निकालना है, उसको कैसे कैलकुलेट करें। हम तो इस सर्किट को सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास लोड अलग से रखा हुआ है, उसको वापस लेके आना है हमारे पास, ठीक है। इस सर्किट को सिंपलीफाई करना, आप इधर से देखोगे तो ये आपको सीरीज में दिखेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बार बार उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया कि यू हैव टू सी इट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। इधर से नहीं देखना, इधर से देखना, जहां से लोड हटाया है उस डायरेक्शन से क्या वोल्टेज क्या रेजिस्टेंस बनेगा। फाइन। मैम ऊपर नहीं दिख रहा, कहाँ तक दिख रहा है, वैल्यू लिखे वो नहीं दिख रहा। करंट सोर्स के ऊपर वाला करंट में ये 3 एम्पियर है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ आपको कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VThevenin एंड RThevenin। अगर ऐसा सर्किट आपको मिलता है तो कैसे कैलकुलेट करें। ऊपर में कितना करंट मैम? 3 एम्पियर 10 वोल्ट। 3 एम्पियर मैम। हाँ 3 एम्पियर। 3 लोड वाला तो पहले हटा दिया गया है हमारे लिए, तो वी डिड नॉट डू एनीथिंग इसके बाद। अभी क्या है कि वो इस टर्मिनल के क्रॉस में VAB निकालना है, या फिर जो VThevenin आपको एक लूप आप ऐसे चला सकते हो आराम से। I'll give you some more values. Just take 1 minute. Some more values are given. This is 2 ampere. This is 3 ampere again. ठीक है, ये दो चीज और मैं आपको देती हूँ। अभी कैलकुलेट हो जाएगा VThevenin।
मैम RTH 20 ohm and VTH 24. You are right. देखो वो क्या है, हमको ये सर्किट पहले से पता है, हमको यहाँ पे करंट बता दिया गया है। अब यहाँ क्योंकि ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इस पोजीशन पे करंट की वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमारा हम क्या लिख सकते हैं, 3 into VA, इधर से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है -3 into 8, ये ऐसे ही फ्लो कर रहा है -2 into 10, और ये +20 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। सिंस ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा तो लूप के अक्रॉस कुछ नहीं होगा, फाइन, सिंपली ये निकाल सकते हैं। मैम यहाँ पे VB ना लिखेंगे 0 के बजाय? हाँ, मींस माइनस VB इक्वल्स टू, ठीक है। तो VA माइनस VB निकल जाएगा, V करने की वैल्यू हो गई, ठीक है, क्लियर है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पूरा क्लियर 4 ओम वाला क्यों छोड़ा? चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी जब आप सॉल्यूशन। मैम वो बाकी रेजिस्टेंस क्यों छोड़े हैं? 4 ओम और 2 ओम को एक बार बता दीजिए प्लीज। ये वाला और 2 नीचे भी। ये 2 क्यों छोड़े, वही तो बोल रही हूँ ना, ये ओपन है ना, जब सर्किट ओपन है तो करंट कुछ ना करे, नीचे वाले में करंट नहीं है, यहाँ फ्लो कर रहा है क्योंकि इधर ओपन है, ये भी यहाँ यस, यहाँ पे इसका 2 एम्पीयर यहाँ पे आ जाएगा। सर्किट ओपन, सर्किट क्लोज रहता तो फिर ये 2 इधर भी, ये जो 2 है वो इधर नहीं जाता। मैम फिर ऊपर वाले का 10 वोल्ट क्यों नहीं लिए? क्या ऊपर वाले में? हाँ वो 10 वोल्ट जब उसमें जा रहा है तो अगर हम दोनों पैरेलल में है ना, हम किसी ऊपर से भी ले सकते हो, लेकिन ऊपर में फिर आपको कैलकुलेट करने में फिर आप ऊपर वाले लूप में जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इसके बी के जो करंट है यहाँ पे उसके अक्रॉस आपको ये वोल्टेज नहीं पता है कि उस करंट सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ठीक है। करंट सोर्स के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज होगा ना, वहाँ पे आपको पता नहीं होगा। यहाँ पे 3 एम्पीयर करंट है, ये 3 एम्पीयर करंट इस ये लूप में अपना आराम से घूम रहा है क्योंकि उसको उधर से करंट नहीं पड़ता, ये 2 एम्पीयर यहाँ पे फ्लो। तो अब ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे कुछ भी फ्लो नहीं है, करंट जब सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट जाता है। तो मैम जो 20 वोल्ट वाला सोर्स है फिर आप उसको क्यों लिए? वो भी तो ओपन सोर्स मतलब ओपन सर्किट हो गया। वोल्टेज ओपन में वोल्टेज तो रहेगा, करंट नहीं रहेगा ना, वोल्टेज तो रहेगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। सो इस जब भी आप इसका ओपन सर्किट में काम करोगे या फिर शॉर्ट सर्किट में काम करोगे, इस चीज को हमेशा नोटिस करना। अगर ओपन सर्किट है और वहां पे कुछ रेजिस्टेंस करंट को नॉट फ्लो, आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। जब शॉर्ट सर्किट भी रहता है, सपोज करो कुछ कंडीशन में अगर ऐसा शॉर्ट सर्किट वाला आपको केस मिल रहा है, ठीक है, तो करंट बोलोगे यहाँ पे कितना करंट है, तो वहां पे 0 करंट होगा क्योंकि सब करंट यहाँ फ्लो करने लगेगा। तो ये सब चीजें आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है तो यू हैव टू गो विद दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये शॉर्ट सर्किट है मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये आराम से सब करंट यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ क्यों फ्लो करना चाहिए, ठीक है। तो इन दैट केस यू कैन इग्नोर दिस, फाइन, क्लियर है। अब भी अब आर थेवेनिन निकालते हैं, आर थेवेनिन क्या होगा? 34/7 मैम। 20 ओम 20 ओम 20 ओम। यस मैम 20 क्या हुआ, थोड़ा आराम से बोलिए, क्या हुआ? ओके, फाइन। पहला काम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंसेस को वोल्टेज है तो शॉर्ट करना है, करंट है तो
ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ये भाई साहब है, इनको हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ये ओपन है अपना, इनको भी हम ओपन कर देंगे। अब इस तरफ से अगर हम देखोगे, इस तरफ से देखोगे, लुक फ्रॉम दिस साइड, क्या हो रहा है, ऊपर में एक ओपन एक शॉर्ट है, तो ये इस लाइन का मतलब नहीं बचा कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सर्किट ही कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एम्पीयर भी नहीं बचा, ठीक है। 8 बचा यहाँ पे, ये ओपन हो गया, मतलब वो भी सर्किट से हट गया। 8 10 2, इसको हम ऐड कर सकते हैं, ये तीनों सीरीज में है, 20 तो R थेवेनिन इक्वल टू 20 ohms। क्लियर है? तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, इस 24 वोल्ट एंड दिस 20 ohms। डाउट किसी को? मैम कल हम लोग का जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्लास हुआ था, तो उसमें हम लोग को अटेंडेंस के लिए पहला ही दिन क्लासरूम में सबमिट करने बोला था, लेकिन ये बीई और फिजिक्स वाला में नहीं बोला जा रहा है, सो वी डोंट हैव टू गिव अटेंडेंस फॉर ऑल दिस क्लासेस। We have to give attendance. I will do that for you. Don't worry. ओके मैम। मैम हाँ, मैम 2 ओम से जो करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तब भी उसको काउंट करना है रेजिस्टेंस में? तो अभी रेजिस्टेंस में तो काउंट करेंगे ना, ओके, रेजिस्टेंस में काउंट करेंगे। सर्किट में देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कोई ऐसा सर्किट भी हो सकता है ना जहाँ पे आपको उसको यूज नहीं करना। सपोज करो आपने 5 रेजिस्टर लगा करके एक सर्किट बनाया खुद से, ठीक है, लेकिन आप उसमें करंट नहीं दे रहे, लेकिन आप उसका रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट कर सकते हो। मैम तो जिस प्रकार हम व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग काम करते थे, तो उसमें जो बीच वाला जो रजिस्टर से करंट नहीं पार होता था, तो उसको गायब कर देते थे, उसको रजिस्टर में नहीं जोड़ते थे कभी उसको। वो कंडीशन अलग है, वो कंडीशन अलग है। आप जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, अब मैंने आपको 5 रजिस्टर दिया, ठीक है, एंड आप उससे आपको कुछ भी सर्किट बनाना है, आप कुछ भी सर्किट बनाना है, तो सीरीज, पैरेलल, स्टार, डेल्टा, व्हाटएवर यू कैन मेक, ठीक है। मैंने आपको 5 डिफरेंट रेजिस्टेंस दिए, आप इस चीज को मिला करके आप कुछ भी बना लो, ठीक है, आप ऐसे बना लो, आप ऐसे बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में जब तक वोल्टेज नहीं रहेगा तब तक आप इसको कैलकुलेट में चलेगा, जब तक ये रेशियो मेंटेन है अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना रहेगा तो आप भी इसका निकालना होगा, करंट हो ना हो, वोल्टेज हो ना हो, इस पूरे सर्किट को, इस पूरे मेश जो भी बना है उसको हम एक रेजिस्टेंस से कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द थिंग। जब वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी नीड टू चेक कि हम वहां पर करंट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टेंस आल्सो, ठीक है। जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो वहां का वोल्टेज ड्रॉप आप क्या लोगे, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप के लिए करंट होना जरूरी है। डोंट वरी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द कॉन्सेप्ट्स, जस्ट गो विद द प्रोसेस, आई एम टेलिंग यू दैट, ओके। विल डू वन मोर। मैम लोड रेजिस्टेंस हमेशा किनारे में ही रहेगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के बीच में भी रह सकता है। तो तुमको बीच वाला लोड दिया है, वैसे नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है।
अभी यहाँ पे आपका लोड है 1 एम्पियर। This is A, this is B. Now your load is 1 ampere. You have to calculate current across 1 ampere. अब देखो ये this depends on examiner. This depends on your question. कोई RL को 1 बोल सकता है, मेरा मन करेगा मैं बोलूँगी 2 RL is 2 ohm. मेरा मन करेगा मैं बोलूँगी RL is 3 ohm. कुछ भी ले सकते हैं, बस उस चीज को वहां से हटा देना and then you have to perform everything and at the end आप उसको सीरीज में लगा करके get the value. Fine. तो अगर your RL का value is 1 ohm, फर्स्ट काम क्या करना है हमको, इसको हटा देना है। अब क्या करना है, इसके अक्रॉस VOC निकालना है। ठीक है, अब वो आप कैसे निकालोगे, सोचो एंड ट्राई करो। ट्वेल्व वोल्ट मैम। 12 वोल्ट। 12 वोल्ट क्या किए, चलो आप बताओ। और किसका 12 है? हाँ मैम 12 वाला। यस मैम 12 वोल्ट। बोलिए आप क्या बोलिए। चलिए 12 कैसे आया? 12 वोल्ट आ रहा है नोडल एनालिसिस से। वहाँ पे 3 एम्पियर और 1 एम्पियर 4 हो गया। VA minus 2 into I minus 4 minus VB equal to 0. VA minus 4 by 2 equal to 4. VA minus 4. VA minus 12 मैम। VA minus 2 into I minus 4 minus VB equal to 0. उसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 minus 4. मुझे सॉल्व हो गया, किसी को सॉल्व नहीं हुआ वो बताओ। सॉल्व जिससे सॉल्व हो गया मैम 24 जो बोल रहे मेश एनालिसिस से। हाँ मैम नोडल मेश एनालिसिस लगाया तो मैम VA minus 4 by 2 equal to 4 वही हम भी x minus 4 is equal to 8 x is equal to 12. को डाउट है अभी भी, ये यहाँ से जितना आया, ये यहाँ से जितना आया, ये यहाँ फ्लो करेगा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर 4 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, अब तो यहाँ पर कितना फ्लो करेगा, 4 एम्पियर फ्लो करेगा, क्योंकि एक ही जगह नहीं है हमारे पास। यस मैम। अब इस लूप में आप लगा सकते हो नॉर्मल VA minus 4 into 4 वोल्ट minus 4 minus VB equal to 0. So VA minus VB will be equal to 12. 4 plus 8. मैम 3 ओम वाला नहीं लेंगे? क्या नहीं लेंगे? 3 ओम वाला, 3 ओम से भी तो 4 एम्पियर जा रहा है ना। आपको क्या करना है ना, देखो इधर से भी घूमने पे वही आंसर होगा। मैम अगर 3 ओम वाला भी लेंगे तो उसी तरह होगा। चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ, कंफ्यूजन दूर करो। अब पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें था कि सब कुछ लेके सब कुछ कैलकुलेट करो। ठीक है, अब क्वेश्चन धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पेसिफिक होता जा रहा है। ठीक है, आप अगर इस ग्रुप में काम करेंगी तो आप लगभग 3 लेंगे।
ठीक है, लेकिन अभी हमको बस VOC निकालना है, हमको दूसरी दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ती। तो जब हमको एक छोटा ग्रुप से VOC की वैल्यू मिल जाएगी, हम क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि आप इस ग्रुप में चलोगे मैम 4 वोल्ट वाले के कारण करंट नहीं होगा क्या? तो ये करंट मैम 4 वोल्ट वाले के कारण करंट होगा, ये पूरे लूप में वही करंट फ्लो कर रहा है ना। आप सिर्फ एक अचानक से में वोल्टेज से ऐसे करंट सोर्स यहाँ पे है, यहाँ पे नोडल आप लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? और लूप में करंट क्या रहेगा? ये वन है, यही करंट यहाँ पे फ्लो करेगा ना। एक लूप में करंट आपको पता चल रहा है। सीरीज अगर आप सिर्फ इसको देखोगे तो एक नॉर्मल सा लूप है। आप बोल रहे हो कि इसके कारण क्या करंट है, वो बोल रहे हो, वही बोलना चाह रहे हो ना कि इससे इस वोल्टेज के कारण क्या करंट रहेगा, तो इस वोल्टेज के कारण -4 कर देंगे। -4 नहीं, यहाँ पे 1 है तो ये क्या आप इस नोट पे कैलकुलेट करें, दिस इज 4, दिस इज 1, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों का समेशन 3 होगा। 3। यस मैम। ठीक है, तो लेकिन हमको इससे मतलब ही नहीं है ना, हमको जब इसके हम तो अभी वही मैं बोल रही हूँ कि वी आर जस्ट स्क्वीजिंग अ सर्किट एंड जहाँ पे जितना जरूरत है उतना कैलकुलेट करके हम अपना काम करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमको पूरी सर्किट का ठेका लेके नहीं करना, तो हमको जो हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस भी हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस सर्किट को देखने से जब हम ये लूप लगाएंगे हमको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना करंट है। उस करंट के लिए तो क्या करेंगे, अच्छा हम देखेंगे कि यहाँ पे करंट कैसे आ रहा है, फाइन वी कैन कैलकुलेट इट। तो धीरे धीरे दिस कम्स विद और तो ये हो जाए फाइन, भी ये भी निकल गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, आप जल्दी निकालना 2 ओम आ रहा है, 2 ओम। बाकी सब तो ओपन हो जाएगा। ये इसको क्या करना है, 2 ओम आएगा, शॉर्ट करना है, इसको ओपन करना है, ओपन करना है, तो मतलब ये खत्म हो गया पूरा आपका ऊपर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे चलो, अब आप इधर से देख रहे हो, जब इधर सर्किट में ये नॉट कनेक्टेड है तो यहाँ पे कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा, तो अब तो योर टर्मिनल्स, अब करंट निकालो, आइए आपके पास करंट 4 एम्पीयर 4 एम्पीयर 4 ohms and the circuit becomes ठीक है। तो और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो बनाने का। यस मैम दीजिए। यस मैम। यस मैम। तो मैम आप गूगल क्लासरूम पर कुछ क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में विल डू थेवेनिन थ्योरम एंड एक दो छोटे थ्योरम हैं। नेक्स्ट क्लास में नॉर्टन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Miss, how much of the syllabus is coming in the first mid semester exam? आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जितना पढ़ा रही हूँ उतना तो आएगा, जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ते चलो, ठीक है। मैम असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्या एक बार कभी? इससे ज्यादा नहीं ना आएगा मैम। मैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगी। मैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के पहले बिकॉज हर कोई के कुछ ना कुछ डाउट्स हैं एंड आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस देयर, तो एक एक को ऑनलाइन में 1 to 1 अभी बताना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि नीचे भी है दैट मच ऑफ टाइम कि हम क्लास का टाइम दें। वन थिंग आई कैन डू, एक एक्स्ट्रा क्लास जब आपको कोई क्लासेस नहीं रहेगा उस टाइम लेकर के हम क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके पोस्ट कर दूं सो दैट कि अगर आपको डाउट आ रही है। ओके मैम। मैम एक
एक डाउट है मैम। डाउट नॉट बचल। मैम अपलोड करना जरूरी है क्या जो असाइनमेंट दिए हैं? कंपलसरी है मैम। मैम जो असाइनमेंट दिए हैं उसको अपलोड करना कंपलसरी है। हमारा मन चुप रहो भाई आत्मा प्रकाश तुम माइक म्यूट करो, तुम्हारा माइक का आवाज कर रहा है बहुत ज्यादा। You have marks for assignments. So just keep that in your mind. नहीं अपलोड करोगे और अगर डिले अपलोड करोगे तो अकॉर्डिंगली मार्क्स कम होते जाएंगे। That you should make your mind. ओके मैम। तो आपको ड्यू डेट दी जा रही है, you have to do that before that itself. And I have all the information कि किन्होंने अपलोड किया है, किन्होंने नहीं किया है और कौन कब कर रहे हैं। अगर आप डिले पे अपलोड करोगे, I'll get that information that you have your submission is late. So you need to. अगर गलत आंसर आ रहा है तो गलत भी अपलोड कर सकते हैं ना, अगर समझ नहीं आ रहा है तो गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर try and solve the question. जहाँ पे डाउट आ रहा है वहाँ पे यूज किया है। थोड़ी है सब सही बना देंगे। At least I should get that information कि you are trying and you are getting something. कि मैं वापस जब पूछूं आपके डाउट के टाइम में बता पाओगे कि हाँ मैं ये गलत चीज में डाउट था। मैम एग्जाम में थ्योरम वगैरह वही लैंग्वेज में लिखना है जो आप लिखवाएं या फिर बुक वाला लैंग्वेज लिख सकते हैं? आप आराम से लिख सकते हैं, it should be proper. यस प्रोफेसर। 3 इडियट देखा है? 3 इडियट पगला मत ना। हाँ देखे हैं, बोलो। Classroom maintain decorum. यहाँ पे your IL is your R 6 ohms is your RL. You have to find current over there. Fine. Using Thevenin theorem. See, if you understand this stuff, you can write it in your own language. Fine. But some things to be mentioned very clearly. अगर आप वहाँ पे independent sources नहीं mention कर रहे हो, सिर्फ sources लिख रहे हो, sources can be independent. But we are talking about only independent sources over here. अगर आप active network नहीं लिख रहे हो, linear network नहीं लिख रहे हो, these terms are not there in your statement, तो फिर गलत हो जाएगा। अगर आप लिख रहे हो, आप समझ के लिखिए, no problem. But खत्म हो गया। Okay. I hope this is done. Question लिख लिए हो? Yes, ma'am. So we'll meet on next class. We'll do some questions from bottom one. And मैम आंसर बता दीजिए। Answer. Just try and next class में बता दें। Okay, ma'am. Just try. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आंसर के लिए समझ करो। Thank you, ma'am. AB कौन सा है, मतलब किसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है? 6